گڑ 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 کرتا رہتا ہے نا. اور جناب علی آپ نے جاتے ساتھ ہی جو توپ چلا دی ہے نا، یہ کہ کرکری کے اوپر سوال داغ دیا کہ میاں وہ گالی کیوں دیتا ہے. اب ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ کاشف بھائی آئے ہیں دلائی کر رہے ہیں، ان کی صفائی کرنے ہیں، ان کے جو یہ آگے بڑی بڑھ کے عمارت ہے نا، آؤ بھائی آؤ فلانی چیز پہ گفتگو کرو، فلانی چیز پر. آپ نے ایک دم مست قسم کا نقطہ پکڑا، جو یہ ان کے اندر خامی ہے نا وہی جا کے پکڑی، کہ تم لوگ کہتے ہو کہ گالی دینا یعنی غلط کام ہے، اور تمہارا جو یہ ملا کڑکڑی ہے یہ 24 گھنٹے اٹھ کے شب و روز گالیاں دیتے ہیں. ایسی تکلیف ہوئی نا اس صاحبزادے خبیثنے کو، اف، صحیح دیکھنے والی حالت ہی، تڑپ رہا تھا وہ. اچھا پتہ ہے کیا جناب، آپ نے جب بات کی نا کہ یہ کہ بدبختوں تم لوگ اپنے اصل نام اور تصویر کے ساتھ کوئی چیز تمہاری اصلی نہیں ہے، یعنی اصل چیزوں کے ساتھ نہیں آتے، تو آگے سے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس چیز کا جواب بھی نہیں ان کے پاس. پھر آگے سے کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری نا 2-5 منٹ، شاید آپ نے دیکھا ہو یا نہیں، تو کہتے ہیں جی کہ مفتی صاحب، مفتی مرشد شاہ صاحب کو حافظ اللہ کو کہو کہ ایک ویڈیو بنائیں تو ہمیں یہ کریں تو پتہ نہیں کیا کریں تو کیا کریں. یعنی مقصد ہے کوئی سوال کا جواب نہیں. اتنے بونگے قسم کے یہ لوگ ہیں. کہتا ہے اچھا تو جو یعنی کرکری کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اچھا جو عثمان گالیاں دیتا ہے وہ، میں نے کہا بالکل غلط کرتا ہے، بالکل غلط کرتا ہے، اس کو گالیاں نہیں دینی چاہیے، پر کرکری کا بتاؤ وہ گالیاں کیوں دیتا ہے. ریس ہو گیا استاد. اوئے کاشی بھائی اس کا ریئل نیم کیا ہے کرکری کا؟ یار مجھے پتا چلا ہے نوید نام ہے اس کا، نوید. اس کو کوئی اصل آئی ڈی بھی ہے کاشی بھائی کو پرانا جو اصل اس کا آئی ڈی ہے اور نہیں ریئل؟ یہ دیوبندی کوئی ایک آدھا ہی آپ کو صحیح آئی ڈی سے ملے گا، باقی سب چور ہیں. جی آؤٹ آف کنٹری ہے کاشی بھائی؟ میرا خیال ہے یہ شاید دبئی میں ہوتا ہے، میرا جی خیال ہے. جی اپنا کاشف بھائی پتہ ہے کیا، اور خرم بھائی السلام علیکم. پتہ ہے کیا والسلام. جناب، یہ ابھی کہ نہیں، یہ تقریباً یہ پچھلے ابو ظبی نام کی ایک آئی ڈی ہوتی تھی اس خبیث نے کرکری کی، ابو ظبی نام کی اچھا آئی ڈی سے بھی آتا ہے یہ، اور ڈان بابا کی آئی ڈی سے بھی آتا ہے. تو یہ ڈان بابا کا یہ جو کیا نام تھا اس کا، کرکری، یہ پھرکری، یہ سارے جتنے نا، اس کا نام فاروق ہے. واٹس ایپ میں نے کافی دفعہ آپ کو بھیجا ہے، اس میں واٹس ایپ پہ نا جب یہ شیعوں یعنی ان کے ساتھ ہمارے کو معاملات سیدھے تھے، تو اس نے مجھے میسج کیا تھا، تب وہ کوئی حوالہ جات چاہیے تھے، تو اس کے اندر فاروق آپ کے لکھا ہوا ہے پاس اس کا نام. آپ کے پاس وہ واٹس ایپ ہے نمبر دبئی کا؟ ہاں جی جی جی، یہ ہے ابو ظبی کے اندر رہتا ہے، یہ عمارت ہے ابو ظبی کے اندر. نہیں وہ نمبر ورک کر رہا ہے اس ٹائم؟ ہاں ہاں چل رہا ہے، بالکل چل رہا ہے. میرے کو سینڈ کر دیں ذرا پرائیویٹ. میں نے واٹس ایپ بھیجا پہ چلے کافی جاؤ دفعہ. نا یار تم دونوں، ادھر واٹس ایپ پہ بات کر لو نا. جی 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 جی. اچھا کاشف بھائی آپ نے یہ جب بڑا زبردست کام کیا، یہ جب آپ نے بات کی نا کہ یہ کوئی بھی گالی دیتا ہے، جس طریقے سے آپ نے اپنے کسی مجاہد کا نام لیا کہ فلانا منا اگر کوئی اس طریقے کی بات کرتا ہے، سخت جملے الفاظ کرتا ہے یا گالی دیتا ہے تو برا کہتا ہے. اللہ اللہ اللہ، تو ان کو فوراً ہی پتہ لگ گیا میاں یہ کھرا آدمی ہے، تو بس ابھی کوئی نہ کوئی ترکیب کرو یعنی ان کو نکالنے کی. تو یہ بڑا اچھا آپ نے کرکری ماشاءاللہ نا، کام کیا کہ کرکری مجھے ایزی لے رہا تھا، کہتا ہے یہ کاشف کو اوپر اٹھا لو، یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کو اوپر اٹھا لو. کاشی بھائی ویسے ہی ہم آپ سے تڑک جاتے ہیں، یہ تو ویسے ہی آپ سے بھاگتے ہیں جب آپ کا آپ پہ طور پہ براٹ پین پہ ساتھ نہیں نہیں، چاہتے وہ اس کو یہ تھا کہ میں نا وہ پریشرائز کر لوں گا کاشف کو، اس کو پتہ نہیں تھا میں نے اسپیکر آن کیا ہوا ہے، میں نے جو دبانی تھی نا پھر اسپیکر جمیل بھائی جی جی. وہ یہ ریس کیوں ہو گیا تھا یہ جو کال پہ بات کر رہا تھا؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ یہ کیا نام تھا، عاصم کیا نام تھا اس کا، سید، پہلے سوال پہ ہی ریس ہو گیا. نہیں دیکھا آپ جواب نے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا. میں نا جب اس آصف بھائی کو انہوں نے نکالا اس کے بعد 2-3 میسج بھیج کے میں نکل آیا تھا. اچھا آپ نکل آئے تھے. جی جی جی. اچھا پھر اصل سٹوری آپ نے نہیں دیکھی. نہیں نہیں. اس نے پھر سب ختم نبوت والے آئیکن والے بندوں کو اس نے بھیجی ریکویسٹ، اور میں نے کہا ہم کون سا ڈرتے ہیں، تم لوگ اتنا نیچے آ کے بیٹھ جاتے ہو اور سن کے پھر چلے جاتے ہو. میں گیا کال پہ، میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتا غلط پڑھی ہے. میں کہا صحیح ہے استاد. کہہ رہا ہے میں کہ یہ بتائیں کہ دین اسلام میں گالی دینا جائز ہے؟
कहता नाजायज़ है। मैं कहा फिर ये कुरकुरी क्यों गालियाँ देता है, हर ब्रॉड पे जाके ये गालियाँ देता है। कहता आपका उस्मान भी तो गालियाँ देता है। मैं कहा गलत करता है, अगर गालियाँ देता तो गलत करता है। तुम अब ये बताओ कुरकुरी गालियाँ क्यों देता है? तो उसने नहीं बोला गलत फिर करता एकदम है? वो टल्ली हुआ। उन्हें कहना था नहीं ना नहीं, आप मैंने कहा उनके तुम रेस क्यों हो गए हो? अभी तो मैंने पहली बात ही की है, तुम रेस हो गए हो। रेस क्यों हुए हो, टल्ली क्यों हो गए हो तुम? मुतालबे उनके ये हैं कि डिबेट के लिए कोई आलिम दीन लेके आओ, हालांकि जो गैर आलिम है उनसे तो उनसे मुनाजरा होता नहीं है, छतर खाते हैं उनसे। फिर मुतालबे आगे से देखें किसी आलिम दीन को लेके आए जी। फिर उसके बाद जो मैंने कहा इनका बज़ाहिर आलिम दीन है कुरकुरी, उसका तकाबुल कर रहे हैं उस्मान भाई से। हाँ, मैंने कहा उसको, मैंने किस मुंह कहा पे कर रहे हैं? पहले अपनी औकात तो दिखाओ कि तुम लोग बात करने के काबिल भी हो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कहा तुम लोगों की औकात नहीं है बरेलवी उलमाए कराम के सामने आने की। फिर मुझे नीचे उतार दिया। फिर बाद में कुरकुरी कहता काचिप को उठा लो, काचिप बंदा ठीक है, काचिप को उठा लो। अल्लाह। वैसे जब भी ये ना बात करें ना कि मुफ्ती मुदस्सिर शाह साहब को लेके आए, तो एक ही बात आगे से सारों को करनी चाहिए, तुम तारिक मजहूल को लेके आ जाओ, हम मुफ्ती साहब को ले आते हैं, मैं तो इसी पर दबा करो कह रहा था बार बार जी। कि अपने असल नामों के साथ आओ, फिर तुम्हारी औकात देखेंगे, फिर मुफ्ती साहब से बात करेंगे। असल नाम तो आओ सामने। एक ने कुरकुरी रखा हुआ है, एक ने पीर मासूचा रखा हुआ है, एक ने क्या रखा हुआ है, एक ने क्या रखा हुआ। कहता 3 उलमाए कराम हमारे इधर ही बैठे हुए हैं। मैंने नीचे हंस के लिखा, मैंने कहा 3 उल्लू माँ। ये देखा था मैंने। एक तो आप काशिफ भाई भूल गए, एक का नाम है सुल्तान शाह, 4 थे उधर। बस Quítame algo si quieres. No, bueno, जनाब जमील अवान भाई, मेरा एक आज़ाना मशवरा पता है क्या जनाब, ये जिस तरीके से आगे उस्मान भाई अपने गए थे उस वो जो लामा साहब है, उसका नाम क्या है, लामा जहाज साहब, उसकी बरात के ऊपर गए थे, तो उनको इन लोगों ने जिस तरीके से हरकत की थी, यानी इनको बार बार म्यूट 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 लगाकर, और यानी एक किस्म की तस्लील यानी हरकत की थी इन लोगों ने, तो क्या ही बेहतर हो कि यानी मुफ्ती साहब इन बदबख्तों की बरात यानी हत्तल इम्कान जाए ना, क्योंकि ये ऐसे लानती हैं, उससे अपना सियासी मफाद उठाएंगे, बजाय इसके कि कोई गुफ्तगू सही करके हो, ये अपने सियासी मफाद के चक्करों में ना बड़ी बदबख्ती करेंगे, तो ये नाकाबिल बर्दाश्त और नाकाबिल तस्खीर नहीं बात हो। उन्होंने कहाँ जाना है, उन्होंने कहाँ जाना है, उनका वहाँ पे काम नहीं है। हम खुद ही वो हमारे जो भाई हैं सारे, हम जाके ही उनसे डील कर लेंगे। और इतने सुहेल इतने तो भाई उनकी उन हैसियत ही उन्होंने नहीं है ब्लॉक भाई। किया हुआ है। उस दिन जमील भाई ने उसको इतने लितर मारे हैं, वो उसके पास सवालों का जवाब नहीं था। वो क्या हमारे उलमा से बात करेंगे? जमील भाई से वो कंट्रोल, वो जमील भाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा था। 4 सवाल उससे पूछे तो उसकी बस हो गई थी, और वो मुंह ता करना शुरू हो गया था। और भी उन्होंने जमील भाई को इन द एंड उतार दिया कि आप जब देखा ना कि नीचे लोग सुन रहे हैं और हमारी इंसल्ट हो रही है, उन्होंने उतार दिया जमील भाई को। वो क्या बात करेंगे सर, गुंडे लोग हैं वो। उनका कोई वो, उनका दीन के साथ क्या काम है? दीन के साथ तो उनका कोई लेना देना ही नहीं है। वो दीन का लबादा उड़ा हुआ है बस उन लोगों ने, और कुछ भी लेना देना नहीं है उनका। जमील भाई ने काफी उस दिन उसकी चतरोल की है, तो साथ ही उन्होंने उठा के बाहर ब्लॉक कर दिया, मुझे भी ब्लॉक कर दिया। वो अब हमारा जो भी आईडी जाता है उसको ब्लॉक कर देते हैं 1 मिनट में। वो अब बात नहीं करते वो। हाँ ठीक। अच्छा ये गुंडे से, बेसिकली अच्छा जी, कल गुंडा आया था एक काशिफ भाई, मैंने एक वीडियो सेंड की ग्रुप में, वो बाबर बकरी नहीं, बेसिकली हुआ ये था कि ओ अजहर भाई चुप कर जाओ। बेसिकली हुआ ये था कि इसने बचपन में एक कुकड़ी चोरी की थी। तो आपको पता है ना, पठान उर्दू सही नहीं बोल सकते, तो मोहल्ले के बच्चों ने इसको कुकड़ी की बजाय कुरकुरी 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 कहना शुरू कर, कुरकुरी चोर कुरकुरी चोर कुरकुरी चोर। उस वक्त से इसका नाम कुरकुरी मशहूर हो गया था। बेसिकली वो पठान बच्चे थे, कुकड़ी उनको कहना नहीं आ रहा था, उन्होंने कुरकुरी 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 कहना शुरू कर दिया। तो इसको ना वही नाम, अब चूंकि पूरे मोहल्ले में, ख़ानदान में, शहर, उस गांव में सब इसको कुरकुरी के नाम से जानते हैं, तो इसने कहा मैं अपना नाम कुरकुरी रख देता हूँ। चलो मेरे मोहल्ले वालों को तो पता चलेगा ना, जो मुझे पहले
चोर कहते थे, अब वो मुझे ये यहाँ मीडिया पर देख कर जो है ना वो खुश होंगे। लेकिन मसला ये है कि वो आवाज के लिहाज से खुसरी लगता है। अच्छा ये ना हमजा भाई, आपने वो वीडियो देखी जो अजहर भाई ने सेंड की है? नहीं, अजहर भाई ने नहीं, बगदादी भाई ने सेंड की है। उसमें नासबी इसको कह रहे हैं कि देखिए आप हमारी बात तो माने ना, हमने आपकी बात मानते हुए अपने नामों के साथ नासबी लिख दिया है। जी उस टाइम मैं और बगदादी भाई दोनों ब्रॉड पे बैठे हुए थे इनके। हाँ जी फॉर यू पे हम सुन रहे थे, फिर मैं अच्छा, अंदर ये गया। ना बेसिकली वो जो कादरी, वो जो है ना अपना हराम पादरी, उसने एक दिन मेरे सामने भरी लाइव में इसको कहा कि तुम यजीदी हो, तुम चुप करो। वो ये यकीन करें कि उसी वक्त खामोश हो गया, वरना इसको कोई इतनी बात करे तो ये खामोश होता है? ये कभी खामोश नहीं होता। ये यजीदी है और यजीदी है। यार ये जो मुस्लिम बॉय है ना, इसको ब्लॉक करें अपनी तमाम आईडी से, ये मुनाफिक है, ये 100% मुनाफिक है, इसको ब्लॉक कर दें, किसी भी ब्रॉड पर ये नजर ना आए ये मुस्लिम बॉय। इतना बड़ा बेगैरत इंसान है, या आगे पिछले रोज़ों में हमारे पास यहाँ बैठता रहा और बड़ी ठाठ से उनको देवबंदियों को लान तान भी करता रहा। अभी उन काफरों के पास गया है तो जाकर उनके ऐसे जोली में जाकर बैठा है, इतने उसके उफ बदबख्त इंसान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लोधी भाई। लोधी भाई वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये वैसे इसने अस्सलाम व भाई रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ दिन पहले इसने लाने बरात भी किया था, माफ़ी भी मांगी है कि जी मैं अभी आला हजरत पे नहीं भौंकूंगा। इसकी वीडियो भी है इसकी। शाह जी है मैं बेईमानियां करदा 50 वारी माजरत कर रहा, 50 वारी रुजू कर रहा, फिर मुंह खोल के भौंकना शुरू कर देता है। ये किसकी तमाशे बात कर रहे हैं लाना। जनाब? मुस्लिम बॉय उमर की बात कर रहे हैं। ये लोधी भाई का दोस्त है। वो लोधी भाई अब अपने दोस्त को समझाते क्यों नहीं है? जौन सा वो उमर देवबंदी। ओहो, बुलाए ना उसको, जरा प्यार मोहब्बत वाली बात करते हैं यार। वो ना फिलहाल ना कोई किसी बात और नहीं, मोहल्ले में खैर है। पेश कर रहा है। बुलाए लोधी भाई ने उसकी लेनी है क्लास। वो तमाशा दिखा रहा है, किसी और मोहल्ले में डुगडुगी बजा रहा है। सलीम, उसको ब्लॉक कर दिया ओहो। यहाँ से ऑलरेडी। बात यह है कि देखें, जो अहले सुन्नत को छोड़ देता है, अपनी लहदा दुकान खोल लेता है, वो फिर खज्जल ही होता है, उसका सौदा नहीं बिकता। मोहम्मद सेल भाई क्या है? तलीम लेनी है जी, तलीम। मैंने उसकी तलीम लेनी है। मोहम्मद सेल भाई तलीम लेनी है उसकी। हमने मैंने सुहेल कहा भाई, लोधी भाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि लोधी भाई के पास ना ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि मिर्जा जूनियर के फॉलोअर्स इनके गर्विदा हैं। बेशक, जो आला हजरत का नहीं वो हमारा नहीं, वो हमारा नहीं, वो हमारा नहीं, वो दीन इस्लाम का भी नहीं है, वो बहुत दूर है। वो अहले सुन्नत की जो बाउंड्री है ना, उससे बाहर है। वो जो सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का नहीं है। नहीं, वो देखे ना, मिर्ज़ा जूनियर कहता है सेल भाई के, कहता है हाथ नहीं लगाना, अगर हाथ लगाया ना तो खड़ा हो जाएगा, और अगर खड़ा हो गया तो फिर बैठेगा नहीं, ठीक है ना। तो फिर तुम बड़ी कोशिश करोगे इसको बिठाने की तो ये नहीं बैठेगा, ना 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 ना। तो ये हाथ लगाने से खड़ा हो जाता है। ये देखे ना क्या उरीली तस्वीरें लगाई हैं आपने। ये जो सबसे ऊपर वाली है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये मिर्ज़ा जूनियर जब औरत बना था ना, जी तो अजमल साहब, इसने कहा था, मिर्ज़ा जूनियर जब औरत बना था, इसने कहा था कि मुझे लोधी की ख्वाहिश है। कॉलर हैं लोधी भाई, कॉलर हैं।
अजमल साहेब। जी अजमल जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी अजमल भाई, ये देखें तस्वीरें खूबसूरत लग रही हैं आपको। मैं बोल रहा हूँ माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। अजहर शाह साहब ने अच्छा बड़ी आज मेहनत भाई की है। बड़े, ये कौन बोल रहा था पहले मामा, ये कौन जी था? जी, बड़े गुस्से में लग रहे थे आज भाई, लग नहीं रहा गुस्से कि में? मतलब कौन सी ब्राड पे देख लिया आपने मुझे? ये अभी सुन रहे हैं ना आप, तो पता नहीं वो लेने देने वाली बातें कर रहे हैं, तो मैं बोला चलो यार थोड़ा भाई को जाके समझाएंगे यार, ऐसी बातें नहीं करते। देखें देखें ऐसा जी बिल्कुल। और ये जो चीज आप बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि ये जो जो अल्लाह हजरत का नहीं है वो हमारा नहीं है, यार ये बीच में आके दूसरे तीसरे बंदों को क्यों फॉलो कर रहे हैं? ये बरेलवी सुन्नी ये वो, मतलब ये जो फसाद बढ़ रहा है ये फसाद ही है। एक नबी के मानने वाले हैं, नबी को फॉलो करें ना, ये बीच में आके किस तरह क्यों शुरू कर लेते हैं? बात यह है कि देखिए जो अहले सुन्नत से हटकर कोई अपनी अलग दुकान खोलता है ना, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है ना कि जमात के साथ यही बात जुड़ के रहना है। अलहदा दुकान मतलब वो अपनी अलहदा जी, दुकान जी, नहीं पकड़े। खोले, आपकी दुकान चलाए, मतलब आपके कहने का मतलब ये है? नहीं नहीं, हमारी दुकान ना चलाए, वो देखें हमारी तो कोई दुकान ही नहीं है, हमारी तो जमात है। सबसे ज्यादा हम खिलाफ हैं, हम कहते हैं कि भाई फिरका वारियत ना करो, बेशक। जमात के साथ जुड़े रहो जो शुरू से चलती आ रही है। सहाबा की जमात है, ताबईन की जमात है, तबा ताबईन जिसको लेके चले आगे, मुहद्दिसीन है, फुकहा है, उलमा है, आइमा इकराम है, औलिया अल्लाह है, ठीक है ना। ये जो जमात चली आ रही है ना शुरू से, जो मेन है, बेसिक है, जो पुराने हैं, नए नहीं पुराने हैं, जो उनके साथ जुड़ना है, मतलब कितने ठीक है ना? पुराने, 100 तो साल 150 फिर ही साल? कामयाबी है। कितने अपने रेवर से मैं आज कह रहा हूँ, हम तो सहाबा की अहले सुन्नत जो है वो तो शुरू से चलती आ रही ना, सहाबा की जमात है जी। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। देखें हम तो आपको यही दावत देते हैं, हम तो कहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने से मुराद ये नहीं कि आप कोई मुझे फॉलो करना शुरू कर दें, मतलब जो कदीम एक सिलसिला चला आ रहा है सहाबा से। देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन जो है वो सहाबा को सिखाया, सहाबा ने आगे ताबईन को सिखाया। एक तरतीब है ना पूरी, एक 1400 साल से एक चेन चली आ रही है। उस चेन को जब आप काट देंगे और आप कहेंगे बाबे तो शाही कोई नहीं, तो जाहिर है चेन कट गई आपकी। जब चेन ही कट गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों तक आप कैसे पहुंचेंगे? जब आपकी चेन ही कट जाएगी, जब ये उस सब चेन के ये- साथ आप मुंसलक ही नहीं रहेंगे। वो मुझे म्यूट लगा दिया था किसी ने, इसलिए मेरी आवाज नहीं थी जा रही। ये चेन तो ऐसे ही कटती है ना। देखें हमें अब जो दीन इस्लाम जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसकी हमें फिक्र नहीं लगी हुई है। बीच में 2-3 बंदे आ जाते हैं, हमें उनकी ज्यादा फिक्र लगी रहती है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे जो अल्लाह हजरत का नहीं है वो हमारा भी नहीं है। बेशक बेशक। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह, देखें आला हजरत सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने वही अकायद को उम्मत तक पहुंचाया है जो शुरू से चलते आ रहे हैं। अब देखें ना हिंदुस्तान, आप थोड़ा सा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो हिंदुस्तान के अंदर जो कदीम जमात है वो अहले सुन्नत ही चलती आ रही है, ठीक है ना। अहले आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से पहले भी अहले सुन्नत, और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जब अहले सुन्नत से कट कर अलहदा दुकानें बनी, मिर्ज़े कादियानी ने अलहदा दुकान खोल ली, देवबंदियों ने अलहदा दुकान खोल ली, वाबियों ने आके जनाब ताज़ीरुन नाज पेश करके अवाम के अंदर नई एक शैतानी तौहीद प्रमोट करना शुरू कर दी। तो उस वक़्त मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके जो गलत अकायद है उनको हाईलाइट किया और ये वाम को बताया 1904 कि ये में अलहदा कोई ये- नई दुकान खोल के चूरन बेच जी रहे हैं। 1904 यानी 1905 यानी कि 120, 25, 30 साल पहले की बात है जब इन्होंने ये सारा कुछ किया। हाँ लेकिन इनमें जी। देखें इसकी किताबों से ही ये देखें ना, जब फितने मेरी मेरी बात सुने, सुने। जब फितने जी जी पता है क्या मेरी बात, जी, जी, जो सुनाएं। चीजें इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड की हैं उनको तो हम फॉलो नहीं करेंगे ना। अभी इन्होंने अपनी जो किताबें लिखी हैं, जो मैं अभी अगले दिन सुन रहा था कि मतलब ये जो बंदी और जी ये वहाबी और ये फलाने ये वाजिबुल कत्ल हैं, ये काफर हैं। मतलब काफर तो नहीं किसी को बोल सकते ना ऐसे। कहाँ लिखा हुआ हाँ, है, गुमराह कहाँ लिखा बोल हुआ है, सकते हैं। गुमराह कहाँ लिखा हुआ है यार। वाजिबुल कत्ल? नहीं ये अगर नहीं अपने कि पास ही सुनी सुनाई बात, अपनी पास ही कहानियां सुनाते रहते हैं। मेरी 40 साल उम्र है, मैंने सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की किसी किताब में आज तक ये नहीं पढ़ा हुआ।
जो आपने यहाँ पे मैंने नई कहानी सुना दी मार्केट के अंदर, नहीं नई कहानी नहीं ठीक है। सुनाई भाई, क्या हो गया सर? और सर नई कहानी सुनाई है ना, मेरी हर सुने। जी आप बोहतान लगा रहे हैं और बोहतान की सजा 80 कोड़े, आपकी दुब्बर पे इस टाइम 80 कोड़े लगने चाहिए, पता है आपको? चलो जी, आप लगा लो भाई, आप खुश हो जाओगे लगा के। नहीं, मैं शरीयत की सजा बता रहा हूँ ना, शरीयत की जो सजा है वो ये है। सारा मामला, जाके मेरी बात सुने, सारा मामला सारा मसला खराब ही तब से होता है जब हम 100-150 साल पीछे जाके ना, जहाँ से हम कैद, जो पीछे से एक गीत आ रहा है, एक नबी का सारा शरीयत हाँ चल जी। रही है, आगे से तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना, निकाल दिया। हम भी यही कह रहे हैं कि जो कदीम तरीका चला आ रहा है, ठीक है ना, उसी को फॉलो करें, उसी लाइन पे रहें। हम कब कह रहे हैं आपको कि कोई नई दुकान खोल लें आप? सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से पहले मेरी बात सुने, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से पिछली जो सदियां हैं, उन सदियों में भी जो आइमा मुहद्दिसीन के अकायद थे, वही अकायद अब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उसी को तो हिफाजत की और उसी को प्रमोट किया और बताया कि जो नए अकायद लोग ऐड कर रहे हैं इनसे बचो। ये अज़ान आ रही है आपकी तरफ से, जी जी, वो अज़ान का टाइम हो गया। माइक म्यूट कर लेना, माइक म्यूट कर ले, माइक म्यूट कर लेना। बात ये है, ये दूसरे भाई भी माइक म्यूट करें, आवाज डबल आ रही, बात ही आवाज डबल आ रही। अच्छा देखें, मिसाल के तौर आपको मैं समझाने के लिए एक बात अर्ज करता हूँ कि लेट्स सपोज आज के दौरे हाजिर में हज़रत बाबा जी अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, उन्होंने एक मुल्क के अंदर एक इंतशार और एक नया फितना जो है वो रूज पे आ रहा था, उन्होंने उसकी सरकोबी की, ठीक है ना, सरकोबी की। और हमें जनाब कोई कहने लग जाएगा कि जनाब तुम बाबा जी के फ़िरके, बाबा जी ने अलहदा कोई फ़िरका बना लिया है, तो बाबा जी ने कोई फ़िरका नहीं बनाया। जो नया फ़िरका आया, नई दुकानें आई, उनको बंद किया उन्होंने कि भाई उन्हीं उसी लाइन के साथ जुड़े रहो जो कदीम हमारी चले आ रही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दौर में जब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के अंदर इंतशार पैदा करने के लिए उन्होंने नए फ़िरके लॉन्च किए मार्केट के अंदर, तो उनका रद्द उलमा ने ही करना ना, और किसने करना है? उलमा ने ही आगाही देनी है अवामुन नास को कि भाई ये अकायद जो है, ये अकायद इस्लाम के अकायद नहीं है, और जो अकायद हैं इस्लाम के उनकी तरवीज की जाए। आपको तो इतना नहीं पता होगा फतावा रिजविया कितनी जिल्दों में है, कभी आपने पढ़ा नहीं होगा। आज 125-150 साल हो गया, कोई आज तक बंदा अहले सुन्नत का मुखालिफ सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह पर एक उंगली नहीं उठा सका। बोहतानबाजियाँ बहुत करेंगे, लेकिन उंगली नहीं एक उठा सकता कि इल्मी तरीके से उनका रद्द या उनके खिलाफ कोई बात नहीं ला सका आज तक। हाँ, बुग़्ज़ के अंदर आप जितना मर्जी कहते रहें, बुग़्ज़ के अंदर जनाब आप जिसको आप तो किसी को भी नहीं छोड़ सकते। दुनिया में सबसे माशाल्लाह, काम आसान जो है ना, वो तकलीद, वो दुनिया का सबसे आसान काम जो है ना, वो किसी के ऊपर तनकीद करना है। तनकीद करनी है जिस पे मर्जी कर दो, मुंह उठा के करनी है ना, जिस पे मर्जी कर दो, और जी आगे काशिफ से भाई। दंदियां निकाल लो। हाँ जी, माशाल्लाह साहब देखो की ना, आईडी से आए हैं स्पीक टू ट्रुथ साहब। एक मिनट लोधी भाई, कॉलर आए हुए। ये अपने ही है काशिफ भाई। जी जी, उनको बात तो करने देना, बेशक अपने ही है, बात तो करने दें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जनाब साहब, ठीक ठाक? अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अल्हम्दुलिल्लाह बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? काफी दिनों से आपकी ब्रॉड नजर नहीं आई। हाँ जी, बस बंद किया हुआ है। बस कभी थोड़ा कभी सा देखता हूँ मैं आपको। हाँ, कभी कभी वो जाते हैं दूसरे ब्राडों पे आते हैं, शाह साहब के पास और दूसरों के पास, लेकिन थोड़ा सा बस ज़हन अपसेट हुआ था तो इसलिए। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह पाक रहम फरमाए। जी अजमल साहब, आप फ्री हो गए हैं? लोधी साहब आपसे बात कर रहे थे। अजमल साहब अपना माइक ऑन कीजिएगा, आपका माइक बंद है क्योंकि जी सर जी। लोधी साहब आप बात कीजिए। जी लोधी साहब बात कीजिए। जी अजमल साहब, आप थोड़ा बताएं अपने बारे में, थोड़ा बताएं आपका ताल्लुक किस मकतबा फ़िक्र से है, कौन सी स्कूल ऑफ थॉट से आप बिलोंग करते हैं? जी सर जी, थोड़ा सा अपना अल्हम्दुलिल्लाह अहले ताल्लुक सुन्नत से बिलोंग कर रहे हैं, अहले सुन्नत में ही रहे हैं
रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रहे हैं। हाँ अभी भी है ना, अभी कौन सा क्रॉस मार के कहीं और चले गए हैं, इधर ही है इधर ही है। रहे हैं का मतलब यही होता है, रहे मेरी हैं बात का सुने मतलब। सर, मैं देखें मैं अगले दिन भी मतलब बात कर रहा था तो वो बीच में फिर कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा आ जाता ना, वो फिर ऐसे कुलिये बताने शुरू कर देता है, हमें फिर इतना पता नहीं। बिल्कुल मैं ऐसे आप ही बोलूं मैं मुफ्ती हूँ तो वो मुझे ज़ेर ज़बरें बताने वाला भी एक बंदा आ गया था। जब ऐसा आ जाएगा तो फिर हमने चुप ही करना है, क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन जो बिल्कुल फिरके ऐसे जो 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 नॉर्मल सी बातों में जो फर्क आ रहे हैं वो तो हम बता सकते हैं ना। वो मसलन। कुलिया बताना शुरू कर दिया था भाई ने, तो फिर मैं चुप कर गया। मैं बोला यार मेरे पास इन चीजों का जवाब नहीं है कि ज़ेर क्या और ज़बर क्या, वो पता नहीं क्या क्या बता रहे थे। मुफ्ती साहब थे कोई, वो उन्होंने फिर वो अपने कुलिये लगा लिए ना। तो बताना ही है ना, उलमा ने बताना ही है ना। अब मुझे देखे सर ना, जी ये बताने का भी तरीका होता है। वो अगले दिन मैं लगे आपको हुए थे, बताता हूँ तरीका, मैं 8 आपको साल तरीका पढ़ के वो बताता हूँ। आए हैं, वो हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? सही बात है, सही बात है। अब मैं आपको नहीं, बताता हूँ एक तरीका। अगर आपके सामने मैं जनाब डॉक्टर तारिक कादरी आगे इल्म की बात खोल के बैठ जाए तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, तो इसलिए फिर देखे ना, आप जब इस्लाम के ऊपर तनकीद करेंगे, अहले सुन्नत के ऊपर तनकीद अस्तगफिरुल्लाह, करेंगे, इस्लाम पे नहीं सर जी, क्या बात कर रहे हैं? मतलब मैं तो ईसाई जब आप बाबों पे देखें, जो उलमा पे आप बाबे तनकीद मेरी करना, बात इस्लाम सुनिए पे सर, तनकीद है ना। बाबों की बात नहीं है। बाबों का जो ये जो शिरक फैला हुआ है ना आजकल के बंदे, मतलब अल्लाह रसूल का नाम कम ले रहे हैं। कौन से बाबा शिरक करता रहा है, कोई बताएं कोई हमें भी। ओहो, तो बंदे तो कर रहे हैं ना सर, क्या कर रहे हैं आप? केड़ा बंदा कर रहा है बताएं मुझे। अच्छा मैं अभी देखें, मैं अभी तकरीबन 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले मैं एक देख रहा था वीडियो ना, ये वो अपना मौलाना इलियास कादरी साहब वो आए हुए थे जी। जब हजरत अब्दुल कादिर जिलानी आने वाले थे तो उनकी पहले से खबरें आ रही थी। सारी आपने कक भी नहीं सुना हुआ। आप सिर्फ यहाँ पे उस वक्त के जब से आप आए हैं ना, मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हुई है, अभी तक तो आपने झूठ और कहानियां ही सुनाई हैं और एक बोहतान लगाया है जिसके ऊपर शरई हुक्म भी आपको मैंने बताया। कोई आपने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है, मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में लिखा हुआ है कि किसी उसका मफहूम है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि किसी बंदे के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे। सेम टू सेम सर जी, हम भी यही बोल रहे हैं, हम भी ठीक है यही ना, बोल सेम टू सेम। फिलहाल तो आप सुनी सुनाई बातें ही पेश करी जा रहे हैं। मेरी बात अच्छा, सुनी बताएं सुनाई ना बात। आपका। अच्छा चले बताएं अच्छा ना, चले ठीक है, चले हम दाएं आपकी बाएं की लेते सारी हैं, छोड़े, हमारी मुझे मेरी हम बात सुने। हम आपकी लेते हैं ना, छोड़ें आप मुझे, छोड़ें मेरे, आप हमें छोड़ दें फिलहाल। आप मुझे अपनी दें मुझे तलीम, और ये मैंने बताएं मैं कि आपकी भी जूता ले लूंगा, आपका। टेंशन ना लें आप सर। क्या हो गया? नहीं, टेंशन ना लें, मैं आपकी भी मैंने तो आपको दे दिया ना सर बरेली का जो एक मिनट था ना लोधी भाई, पास। नहीं एक मिनट लोधी भाई, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं नहीं, प्यार मोहब्बत से सर, प्यार और मोहब्बत मेरी से। बात सुने नहीं, सर वो जी। अजमल साहब एक मिनट, अजमल साहब एक मिनट। प्यारे भाई, आप पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई देखिए ना, अब आपने एक इल्ज़ाम लगाया ना आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह पे, तो उसका सबूत तो दे देना मेरे प्यारे भाई। चले जी, फिर मैं नेक्स्ट टाइम में वो पेपर भी लेके आऊंगा साथ में जिस पे लिखा होगा। नहीं, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, अगले 2-3 घंटे इधर ही बैठे हुए हैं। मैं भी आ जाऊंगा इनको। आराम से ये एक दो बंदा शायद मुझे जानता है कि मतलब मैं वक्तन फवक्तन अटैच हो जाता हूँ, भागता नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कुछ बातें दुरुस्त हैं, कुछ बातें आपकी दुरुस्त हैं, मैं आपकी बातों से बड़ा सहमत हूँ। लेकिन देखिए ना, अब आप जब कॉलेज में दाखिला लेने जाएंगे तो वो आपसे मैट्रिक की सनद तो मांगेंगे ना। बेशक। ठीक है, मैट्रिक की सनद वो मांगेंगे तो सनद तो देनी पड़ेगी। जी जी। अब आपने बात कर दी है ना, एक इल्जाम लगा दिया है, उसकी सनद तो देनी पड़ेगी अब आपको। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल सर जी, इधर ही देके जाएंगे, टेंशन नहीं ले। ठीक है अजमल साहब, एक सेकंड जरा यहीं पे रुकिएगा। लोधी भाई जरा वो बात रिपीट कर दीजिए जो इन्होंने एक इल्जाम लगाया आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह पे, ताकि इनको आसानी हो जाए वो ढूंढने में। वो नहीं रिपीट नहीं, कर वो दीजिएगा लोधी भाई जरा। और ये काफर वाली बात। अजमल भाई एक सेकंड, अजमल भाई मैंने आपसे गुजारिश की ना, मैंने आपसे वक्त मांगा, मैंने आपको बोला एक सेकंड। जी उस्ताद मोहतरम, वो इन्होंने बता दिया। इन्होंने कहा जी कि वो जनाब उन्होंने लिखा हुआ है कि ये लोग जो है ये काफर है और वाजिबुल कत्ल है। ठीक हो गया। अजमल भाई आप ले आएंगे फिर आज या कल में, कोई 2-3 दिन में? सर जी आज की डेट में ही आएगी, टेंशन ना लें। आज की डेट में, कल नहीं। चलो, अजमल भाई कह रहे हैं कि ये हवाला लेके आएंगे आज ही की डेट में। और चलें ठीक हो गया जी, बहुत बेहतर है, अच्छी बात फिर है। आपकी ना, फिर आप जब तशरीफ लाएंगे लोधी भाई, अगर नहीं हुए तो मैं कॉल करके बुला लूंगा इनको, ठीक है? जी जी, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और दूसरा मुझे अजमल भाई, अब आपकी तरफ हम थोड़ा सा आते हैं। आपने जी, काफी जी, बातें की,
मैंने कोशिश की कि आपको सही बात की तरफ आगाही की जाए अपनी ईमानदारी के साथ, अपने नाकस इल्म के ज़रिए। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि मौजूदा आप किस मकतबा फ़िक्र से या किस स्कूल ऑफ थॉट से आप ज़्यादा मुतासर हैं, गांधी स्कूल ऑफ थॉट से या मतलब कि मिर्ज़ा इंजीनियर की थॉट से, या मौजूद कोई और आपने नई कोई सिस्टम कोई खोला हुआ है उसके बारे में नहीं थोड़ा नहीं, कोई सिस्टम नया नहीं खोला हुआ, वही अहले सुन्नत पे चल रहे हैं अभी, और इसी पे रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं, मौजूदा दौर के कोई 3 उलमा के नाम बताएं जो आपको बहुत, जिनसे आप मुतासर हैं और आपके समझते हैं मौजूदा कि ये दौर में 100% देखिए जी, 3 उलमा में से